were discussing photos, so he showing his some of composition. So what I was telling कि इसको थोड़ा सा और zoom करके इसको थोड़ा सा magnify करो, थोड़ा सा just zoom out, हाँ थोड़ा सा और zoom out, हाँ that's it. तो इसमें हम ऐसा composition रखेंगे, we'll make the composition like this. So next time he can try to have the same composition right on the camera. Right. तो उसमें क्रॉप नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है. इनिशियली व्हेन वी डेवलप अवर फोटोग्राफी स्किल्स हम ऐसे ही करते हैं, हम थोड़ा वाइडर फ्रेम कैप्चर करते हैं एंड लेटर इन एडिटिंग वी क्रॉप इट टू मेक दैट परफेक्ट कंपोजिशन. बट वी हैव टू डेवलप अवर आइज कि हाँ हमारा कंपोजिशन का टेस्ट डेवलप हो गया. सो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई डायरेक्टली डू ऑन द कैमरा इफ पॉसिबल. हर बार पॉसिबल नहीं होता है, लाइक वी स्ट्रगल विद द लेंस लिमिटेशन, तो उतना पास नहीं जा सकते. बट इफ वी हैव अपॉर्चुनिटी कि हम उसको फ्रेम को फिल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू क्रिएट द फ्रेम राइट ऑन द कैमरा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन क्रॉपिंग पार्ट. तो वी हैव टू डेवलप इन द सेंस कि हमें क्रॉपिंग कम से कम करना है. सर अगर स्लाइटली डीफोकस हो गया है कोई फोटो नहीं, इफ इट्स आउट ऑफ फोकस वी कांट डू. स्लाइटली आउट ऑफ फोकस तो हाँ डिटेल्स नहीं आएंगे उसमें, यू कांट शो डिटेल्स. बट हाँ थोड़ा सा अगर लॉन्गर वर्जन उसका ब्रॉड वर्जन दिखाएंगे फोटो का, वी विल नॉट नोटिस. उसमें हम नोटिस नहीं करेंगे डिटेल्स को. वी लुक फॉर डिटेल्स व्हेन वी आर वर्किंग इन क्लोजअप, उसमें हम डिटेल्स चेक करते हैं. नाइस. बट अगेन द बैकग्राउंड इज नॉट डिजायरेबल. वो इतना नहीं था क्योंकि हमारा जो उसका बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को डिस्टेंस था, इट वाज नॉट दैट मच. उसकी वजह से वो ब्लर आउट नहीं हुआ. वो के जो हमको जो चाहिए था क्लियर बैकग्राउंड, क्लीन बैकग्राउंड, वो नहीं बना. लाइट. बट अगेन इसमें क्या कर सकते हैं, इसको शेडो में हम रेस करने का ट्राई कर सकते हैं एडिटिंग में. थोड़ा सा उसमें आईज का डिटेल दिखेगा आपको, क्योंकि इसका आई थोड़ा सा टेक्सचर्ड है ना, अलग है, डिफरेंट है, इट्स नॉट दैट नॉर्मल. तो इसमें कैच लाइट नहीं है, बट स्टिल यू कैन मैनेज थोड़ा सा उसमें उसका लाइट ठीक करके, एक्सपोजर ठीक करके यू कैन मैनेज. लेना था एक्चुअली दैट टेल, बट वो अगेन आई थिंक फोकस हो गया. बट इट्स नॉट दैट आउट ऑफ फोकस. ठीक है, इतना चलेगा. इट्स वेरी मार्जिनल, शार्पेस्ट नहीं है, बट स्टिल गुड डिटेल्स वी कैन ऑब्जर्व. मतलब एटलीस्ट फैन तो दिखता है. यस. It's not that out of focus. जब हम out of focus बोलते हैं, it means something is that all your photo is looking like blurred. वो उसको हम consider करते हैं out of focus के लिए. If it's little bit, we can say not that sharp. It means थोड़ा सा उसको कहते हैं, what was the term? Seems that day I was not having good breakfast, so I just forgot the term diffraction. So in diffraction, it's a very big phenomenon in photography which occurs when light waves bend and interface with each other, and it's causing a loss of sharpness. It's an optical effect that limits the resolution of a photograph. And why it is happening like this? Because when we are working with high f number and small aperture, so when light passes through a small opening like camera's aperture, the light rays spread out and interfere with each other at certain point. So this interference creates a diffraction patterns with areas of high light intensity and areas of low light intensity. So this pattern is called an airy disk, which is a circular pattern with bright rings around the center. So it's all about the diffraction. So diffraction can make your photos look blurry. It may appear blurry, but it's not something which you have done wrong or with anything wrong with your camera setting. It's just a limitation when you're working with high f number. So try to find your, we can say, the best value for the f number, taking photos with the f14 or higher, and take couple of 3-4 stops photos like f14, f16, something like that, and see that how the quality is coming, where you see that image starts appearing blurry. The smaller the aperture, the more the light diffracts. So that's the same thing you need to take care about, and it makes the image look softer. So it's not autofocus that image may appear look blurry, softer.
So that's something you need to take care about. So in my own workshops, I always advise my participants to start working with that small f number possible, so they can allow a lot of light to the sensors, so they will not feel any degradation in the quality which can create because of the diffractions. So I hope it makes everything clear. Thank you. एफ नंबर को अवॉइड करना पड़ता है. वी हैव टू वर्क ऑन द टिल द पॉइंट जो हमारा डिटेल्स जहाँ पे हमको अच्छे मिल सकते हैं. वी कैन कैप्चर द इमेज एंड ऑन डिफरेंट एफ नंबर, और उसमें देखते हैं कि डिटेल्स किस में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं. जैसे ये अभी ये गया, राइट? तो इसमें आपका कैच लाइट भी आ गया है, बट यू हैव टू करेक्ट, थोड़ा सा एक्सपोजर ठीक करना है. इजीली यू कैन डू दैट, हो सकता है आराम से, इजीली. वी कैन व्हेन वी कैन सी सम डिटेल्स ना, उसको हम एक्सपोजर को करेक्ट कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू सी एनी डिटेल्स इन द शेडो, देन इट मे बी डिफिकल्ट. वो डिटेल निकलेगा लेकिन वो नॉइज क्रिएट करके निकलेगा. ये ओवर एक्सपोज होता है नीचे का, नहीं होगा. शेडोज इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज मैं तो अभी तक यूज ही नहीं कर रहे हैं. मोस्टली एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इवन ऑन विंडोज वी हैव ऑप्शन टू फिक्स हाइलाइट्स एंड शेडोज. अभी तो विंडो में भी डाल दिया, पूछना था डाउट, फोटो एडिट में डाल दिया हाइलाइट्स एंड शेडोज. तो शेडोज को हम रेज करते हैं तो वो ब्राइट जो एलिमेंट रहता है, ब्राइट पार्ट, उस पर वो कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो सिर्फ शेडो में लाइट रेज करेगा. तो जब कोई बैकग्राउंड में जो है उस पर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो डार्क शेडोज है उसी में लाइट रेज होगा. मतलब नॉट नेसेसरी कि फोटोशॉप में ही करना चाहिए. इट्स नॉट, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स नाउअडेज. नहीं ऐसा, इट्स नॉट दैट. वो है आपके पास कि अगर बजट है, यू हैव ऑप्शन टू यूज दैट, देन इट्स बेटर. वो प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आपका. हाँ उसमें है ना, बट नाउअडेज इट्स नॉट दैट हार्ड. अभी मैंने जो अपना परचेज किया हुआ है लाइसेंस, इट्स 318 पर मंथ. इसमें आपका पेड है, आपका लाइट रूम एंड फोटोशॉप दोनों में कॉम्बो है. वो नया लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्लान. नहीं विंडोज मैक बोथ. तो 318 पहले मैं यूज करता 800 वाला प्लान. 800 में आपका ब्रिज आ जाता है, एंड देयर वर कपल ऑफ अदर एप्लीकेशन जो मैं यूज नहीं करता हूँ. मुझे तो दिखा नहीं सर, कभी दिखा तो आप. मैंने उसको भी लास्ट ईयर दिसंबर में ही उसको फिक्स किया है अपने प्लान को. उससे पहले मेरा 2-3 साल से 800 वाला चल रहा था, तो वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है. 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का लेते हैं एकदम से, इसलिए वो. हाँ एनुअल रहता है ना वो, बट इट विल बी चार्ज मंथली बेसिस. अच्छा वैसा होता है क्या? हाँ इट विल बी एनुअल, वन गो में नहीं होता. आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है, बट यू विल बी पेइंग मंथली. बट उसका जो ग्लिच, उसका जो कैच पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको अगर कैंसिल करना चाहते हो तो आपको कब कर. तो द कैच पॉइंट इज दैट कि अगर आपने मिडल ऑफ द ईयर उसको कैंसिल किया, फॉर रिमेनिंग ईयर दे विल चार्ज सम पेनल्टी. अगर इन द मिडल, नॉट कैंसिल, इन द मिडल ऑफ द ईयर, एक साल में कैंसिल क्यों करेगा कोई? नहीं, पॉज का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कैंसिल. नहीं अगर कोई करता है, जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आ गया था व्हेन आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी ना, कि मुझे नया इसमें प्लान दिख रहा है 318 का, एंड आई वाज ट्राइंग टू बाय दैट प्लान. तो व्हेन आई वेंट टू फॉर कैंसिलेशन, इट गेव मी वार्निंग कि आपको 2000 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा इफ़ यू कैंसिल इट नाउ. सो वेट टिल दिसंबर, सो यू विल नॉट हैव दैट पेनल्टी. बट उसका एक वो है ट्रिक टू ओवरकम. उसका एक ट्रिक है टू ओवरकम दैट ट्रिक, कि आप उसको कैंसिल करो, मतलब कैंसिल मत करो, उसको अपग्रेड करो विद सम अदर प्लान, और उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दो, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. वो भी मुझे पूरा रिसर्च करके निकाला कि हाउ टू अवॉइड दैट पेनल्टी. तो मुझे फिर उसका वो मिला कहीं से फिक्स, किसी ने डाला हुआ था अपना एक्सपीरियंस, कि आप उसको पहले अपग्रेड करो कोई सस्ते से प्लान से, कोई भी ले लो पैकेज सस्ता वाला. उसमें क्या है, इसका एडोब का रूल है कि अगर 14 डेज में अगर आप कैंसिल करते हो, देयर इज नो चार्ज. उसका कैंसिलेशन कुछ नहीं, आपको पूरा रिफंड आ जाता है. बट ये जो आप सर प्लान बोल रहे हो, ये तो नॉर्मल पेज पे तो दिखता नहीं है सब्सक्रिप्शन. हाँ वो सर्च करना पड़ेगा आपको. मैंने भी वो सर्च किया प्लान में अपग्रेड में जाके, तो सर्च करके मिला इजीली. इफ यू ट्राई टू, कभी कभी वो फेसबुक पे ऐड आती है. आज फेसबुक पे कभी कभी ऐड आती है दैट 318 पर मंथ. तो आपका उसमें सिर्फ लाइट रूम एंड फोटोशॉप, ओनली 2 एप्लीकेशंस. फुल वर्जन है या कोई?
you will have version for desktop, laptop, for mobile in your package. ये सारी applications आप full version mobile पे भी use करता हूँ. So we were just talking about the break stereotype composition framing. यानी कि I was talking कि we should not be fully relying on that rule of thumb. ऐसा नहीं है कि पूरा rigid होके जाएंगे rule of thumb पे. Sometime we can deviate little bit here and there. थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे चलेगा. But we should be focusing on the details. अपने को details अच्छे चाहिए. And composition में framing का technique क्या रहता है? Whatever the elements around, we have to engage those elements. ना involve करना है उसको composition में. अगर कोई tree branches हैं, उसको involve कर सकते हैं. And we should look for good contrast. That's the main thing. अगर contrast नहीं है image में, then your subject will merge with background. So that we should avoid. Something which is contrasting. Gear does matters. हाँ, gear does matter. so if you don't have that big lens, then you may struggle for the reach. आपके पास है, but still you are struggling क्योंकि आपके पास और भी F8. It was giving pain on the F8 क्योंकि F8 पे आपको वैसा बुके नहीं मिलने वाला. So the manufacturers doing with purpose वो बड़ा फोकल लेंथ दे रहे हैं on reasonable rates, but with big F number. तो it's a kind of we can say वो क्या है उसको तो बना के वो दे रहे हैं consumer को that you have option to go for longer focal length, but on the cost of aperture. So if someone know that what is the value of aperture, तो वो उसमें नहीं जाएगा. They will not get caught. But some people get caught into that their strategy. उसमें वो फंस जाते हैं, फिर बाद में वो struggle करते हैं. So आपके पास एक ही ऑप्शन है कि you should have be very nearest possible. F8 पे आपको अच्छा बुके तभी मिलेगा then you are as near as possible to that subject. वहाँ पर आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. मे बी आज कुछ मिले भी होंगे. थोड़े दिन